Guys, welcome to my YouTube channel again. Myself, Professor Ghanshyam Mishra, and going to discuss the important MCQs on financial accounting. Dear students, these MCQs series are going on, and now we are discussing the topic capital and revenue expenditure along with capital and revenue receipts and incomes, etc. Without having any loss of time, let us start from question number 36. I have already provided you two videos relating to capital and revenue expenses, and now we reach up to 36 questions from the book Professor PC तुलसियान. हमारे गुरुजी हैं और हम आपकी बुक से MCQs क्वेश्चन जो स्पेशली CPT एग्जामिनेशंस के लिए CMA, CS फाउंडेशन, UPPGT एंड UPPCL एसेट्रा, MCOM एंट्रेंस, B.Ed एंट्रेंस, SS accountants, UGC NET, etc. All of the students can be benefited from the MCQs of the book of Professor PC Tulsian. Dear students, I am going to discuss the MCQ questions of Professor PC Tulsian from question number 36, and up to question number 35 I have already provided two videos on capital and revenue. डेयर स्टूडेंट्स, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑल आर कोऑपरेटिंग मी एंड व्यूइंग माय वीडियोज, और आप लोगों के व्यूज भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. इससे हमें काफ़ी कुछ स्टिमुलेशंस मिलता रहता है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से. देयर इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटेरियल. Material is itself a revenue expenditure. So therefore, import duty on material, it means कि you have purchased goods. Over import duty have been charged. So this import duty will be added to your purchases account, right? And it will be the part of your purchase. So therefore, it should be a revenue expenditure. B. Answer will be correct. नेक्स्ट देखें, लीगल एक्सपेंसेस टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स इज. बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है. लीगल एक्सपेंसेस ड्यूज, अब कस्टमर कौन है? तो आपके कस्टमर्स वो होते हैं जिनके बेसिस पर हम रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंसेस करते हैं, राइट? समटाइम वी सेल गुड्स टू आवर कस्टमर्स, sometimes they return goods to us, sometimes they pay us, sometimes they get credit. It means आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कस्टमर्स हमारे कैपिटल हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर इफ लीगल एक्सपेंसेज हैव बीन पेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूज विद कस्टमर्स, तो दैट वुड बी रेवेन्यू एक्सपेंसेज. और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है, इफ एनी प्रॉपर्टी, इफ एनी एसेट्स हैव बीन सीज्ड बाय एनी अदर पर्सन. इन such condition, if any expense, legal expenses have been paid to protect that property or to get that property again, so that would be capital expenditure. But in this case, legal expenses paid to recover the customers, to recover the dues from customers, so that will be in the course of your business, right? So that should be revenue expenditure. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 38. हमने यहाँ पर टिक लगा रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन almost we always debit it to the profit and loss account, right? We debit it profit and loss account.
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होगा कि दैट इज रेवेन्यू लॉस। माय डियर, दिस इज नॉट रेवेन्यू लॉस, दिस इज कैपिटल लॉस, बिकॉज प्रॉपर्टी, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, लाइव स्टॉक etc. all are your assets, and if any loss arise on sale of assets, that will be capital loss, not a revenue loss. So that should be answer A should be the correct answer for this question. Next देखें, amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site. Dear students, you have demolished a building and thereafter you are going to construct a new building over there. So this is one of capital expenditure, because you are preparing a building, you are constructing a building, and this building will provide you benefit for a long period, not a short period. So therefore it should be long term. Long term means capital. So capital expenditure, it means 39 का आंसर A should be the most relevant. नेक्स्ट देखें, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम को ही चेंज कर दिया इन्होंने। अब आप यहाँ पर एनालाइज करें कि क्या ये विद इन 1 मंथ है या फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स है, 6 मंथ है और अप टू 12 मंथ ओनली है। ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि दिस इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इफ दिस इज फॉर लॉन्ग टाइम तो दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट देखें, परचेज ऑफ पेटेंट राइट इज। अब नाउ यू हैव परचेज अ पेटेंट राइट। पेटेंट क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, नो हाउ, these all are intangible assets, and in case of purchase of intangible assets that will be capital expenditure. तो यहाँ पर आपका 41 में A आंसर will be the correct answer. Same as question number 42 is purchase of goodwill. तो dear student, goodwill is always purchased and thereafter revalued. Right? If we do not purchase the goodwill, then we don't have any goodwill in my account until it is purchased. जब इसे हम खरीद लेते हैं तो गुडविल हमारे अकाउंट में यानी एसेट्स में होती है, और अदरवाइज अगर हम बिजनेस सेल्फ स्टार्ट किए हैं और कंटिन्यू चला रहे हैं तो गुडविल तब तक नहीं होगी जब तक मेरी बिजनेस बिकेगी नहीं, राइट। तो यहाँ पर गुडविल फॉरएवर है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। यू हैव परचेज दिस गुडविल। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेक्निकल नो हाउ आपने खरीदा है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ लाइव स्टॉक। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ये लाइव स्टॉक क्या होता है? स्टॉक तो मैंने देखा लेकिन लाइव स्टॉक नहीं देखा। बेटा, घोड़े, गधे, खच्चर ये सब लाइव स्टॉक होते हैं, और ऐसे बिजनेस के पास भी, बिजनेसमैन के पास भी घोड़े, गधे, खच्चर, हाथी वगैरह वगैरह पाले जाते हैं। भैंस, गाय भी लाइव स्टॉक के अंदर ही आती है। तो लाइव स्टॉक पर हमेशा ध्यान रखना कि कभी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है। लाइव स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, और लाइव स्टॉक की वैल्यूएशन करने पर इफ देयर इज एनी लॉस तो दैट वुड बी लॉस ऑफ लाइव स्टॉक, इफ देयर इज एनी इनकम तो दैट वुड बी इनकम ऑफ लाइव स्टॉक, बट दे विल बी कैपिटल इन नेचर, राइट। तो यहाँ पर परचेज ऑफ लाइव स्टॉक विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 इज हियर, and now amount spent on new sign board at airport. So new sign board have been advertised. Just for advertisement, new sign board was
पुट देयर फॉर एडवर्टीजमेंट। तो न्यू साइन बोर्ड आपने लगवाया है। अब ये न्यू साइन बोर्ड नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स एक्सेट्रा है, दिस इज वन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज दिस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एडवर्टाइजिंग कंपनी। अगर आप एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर होते तो मे बी पॉसिबल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है फेस्टिवल एडवांस टू द एम्प्लॉय। अब यू हैव पेड समथिंग एडवांस टू द एम्प्लॉय। इफ एनी एडवांस इज पेड टू द एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन, तो दैट वुड बी, इफ इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, तो दैट वुड बी प्रीपेड। यहाँ पर फेस्टिवल का एडवांस दिया गया है तो ये क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेज होगा। यानी एनी एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, एनी एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस दैट इज in the course of business, right? But that would be written off in the next year. अगले साल इसे आप राइट ऑफ कर लेंगे या रिकवर कर लेंगे, राइट? तो दैट शुड बी प्रीपेड एक्सपेंसेज। नेक्स्ट है एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स इज। अब गुड्स के सप्लायर के लिए दिया गया तो दिस इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। गुड्स के सप्लायर को अगर आपने एडवांस दिया तो दैट वुड बी लोन। ये क्या होगा, एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स। तो ये क्या हो गया, आपने सप्लायर्स को एडवांस दे दिया। अब ये एडवांस रिकवर होगा। रिकवर होगा कब, जब आप उससे गुड्स परचेज कर लेंगे तो रिकवरी होगी। अगर ये शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टर्म में है तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और अगर ये लॉन्ग टर्म में हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन सकता है। लेकिन रुके, यहाँ सप्लायर्स ऑफ गुड्स है, गुड्स का ही सप्लायर है, सप्लायर ऑफ एनी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सप्लायर ऑफ प्रॉपर्टी होगा तो एडवांस आपका लोन होगा। और सप्लायर्स ऑफ गुड्स है तो ही विल प्रोवाइड यू गुड्स विद इन अ टाइम, विद इन टाइम। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अभी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है तो तब तक आप इसे भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर लेंगे। अभी ये एक्सपेंस हुआ नहीं है। एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो दिस इज एक्सपेंस। और एनी एक्सपेंसेज दैट इज एडवांस बट नॉट रिसीव्ड एनीथिंग एज अ गुड्स, राइट? तो यू आर गोइंग टू रिसीव गुड्स ओवर देयर। तो यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे, एडवांस टू सप्लायर विल बी, नॉर्मली आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका आंसर सही होगा, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि विद इन टाइम आपका गुड्स ना आ सके तो 31 मार्च के बाद भी आप इसे रिसीव कर सकेंगे। इसलिए इसे आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48, दिस इज वन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप इसे सही ढंग से पढ़ें एक बार। सेकेंड हैंड मशीन वाज परचेज फॉर ₹1 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 1%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर इट that in case of purchases, all of the expenses relating to the purchase of any property, any goods, that would be added to the cost of that purchase. It means purchase will increase. अब यहाँ पर सेकेंड हैंड मशीनरी 1 लाख की है, 1% ब्रोकरेज तो 1000 हो गया, 1,01,000। It was brought to the factory after incurring transportation cost 2000, यानी 1,03,000 हो गया, and repaid a cost of 3000, 1,06,000 हो गया, installation charges 4000, 1,10,000 हो गया, and 5000 trial run तो 1,15,000। It means कि you have paid for purchase of second hand machinery up to all of the expenditures relating to the purchases and begin it or to put it in use। put in use से पहले के जो खर्चे हैं वो 1,15,000 के हैं। और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू 11 months।
on which the machine was again repaired a cost of rupees 6,000. This is one of revenue expenditure because the machine put in use before 11 months. तो 11 मंथ से पहले पहले मशीन यूज में आ चुकी है। अब जो भी खर्चे होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू रुपीज 1,15,000 ही कंसीडर किया जाएगा। रिमेनिंग एक्सपेंसेज विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपका आंसर सी कंप्लीट है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 49 क्वेश्चन में सेकेंड हैंड कार इज परचेज फॉर रुपीज 20,000. The amount of rupees 3,000 spent on its repair. Okay. 1,000 incurred to get a car registered. Okay. Name and 2,000 paid to the dealer's commission. Okay. And amount debited to car account will be. कार में क्या क्या अमाउंट आएगा? तो 20,000 की परचेजेज है, ये आएगी। 3,000 रिपेयर्स है, ये भी। 1,000 कार रजिस्ट्रेशन का, ये भी। 31426 26,000 रुपीज पूरा आपकी कार अकाउंट का पार्ट होगा। बिकॉज ऑन परचेज ऑफ एनी एसेट्स ऑल ऑफ द एक्सपेंसेज विल बी एडेड टू द परचेज, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ योर परचेज। तो टोटल अमाउंट विल बी 26,000 एंड द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50. This is also numerical problem. If repairs cost is rupees 50,000, whitewash expense 10,000, cost of extension of building is rupees 5 lakh, and cost of improvement in electrical wiring system was rupees 40,000. The amount to be expensed is, खर्चा कितना लगा वो आपसे ये पूछ रहे हैं, कितना खर्चा लगा। तो देखें कार रिपेयर का लगा 50,000, वाइट वॉशिंग का लगा 10,000, राइट। तो ये तो दोनों खर्चे हमें दिख रहे हैं। और बाकी आपने बिल्डिंग खरीदा है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम जो मेंटेन किया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लंबा चौड़ा खर्चा हो गया, ठीक। तो यानी टोटल अगर खर्चे की बात की जाए तो एक्सपेंसेस तो आपका 60,000 है। यहाँ बेटा ये नहीं पूछा गया है कि इज दिस कैपिटल नेचर और इज दिस रेवेन्यू नेचर, राइट। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात किया जा रहा था, इसलिए आपका टोटल एक्सपेंसेस 60,000 तक एक्सपेंसेज है, बाकी सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, आपने उसे कैपिटल मेंटेन किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. कॉस्ट ऑफ 1,80,000 फॉर dismantling, removing and reinstalling plant by a company incurred in connection with removal of work to a more suitable locality. अब क्या हुआ, इन्होंने अपने प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह पर ले गए, ट्रांसफ़र कराए और सुटेबल लोकेलिटी में पहुंचा दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सर ये खर्चा कैसा होगा। तो बेटा देखो ये खर्चा कैसा होगा, 100% प्लांट की बात किया जा रहा है, गुड्स की बात नहीं किया जा रहा है। प्लांट आपकी कैपिटल एसेट्स होती है, तो एक प्लांट को दूसरे जगह पर आप शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे दैट वुड बी कैपिटल इन नेचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट 52. कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,000 incurred for dismantling a machine worn out. देखिए दिस इज वेरी लेस एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 1,000। डिसमेटलिंग अ मशीन वर्न आउट, मशीन का अगर छोटा मोटा कोई भी पार्ट्स खराब हो जाता है, उसे बदलना पड़ता है, तो नॉर्मली हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि दिस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अब ये आईसी इसकी जलेगी नहीं, या जो भी है वर्न आउट हुआ है वो कभी भी अब खराब नहीं होगा, ऐसी गारंटी तो मैं लॉन्ग पीरियड मान लेता, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। यहाँ पर जब कुछ भी आप ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप इसका करेक्ट आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानकर चलेंगे और आपका कंप्लीट और करेक्ट आंसर बी होगा।
और बेटा 53 क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन of this video. Revenue from sale of products on credit ordinarily is reported as a part of earning in the period. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर बेचा गया है, इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग। अब ये भी बता दिया कि ये पार्ट ऑफ अर्निंग भी है इन द पीरियड, पीरियड के अंदर, तो उसे आप क्या मानेंगे? द सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्टेड, द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर, द प्लानिंग टेक प्लेस। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कैश मिला नहीं, प्लानिंग हुई नहीं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ नहीं, तो आप इसको क्या मान लेंगे? सेल। यानी कि क्रेडिट सेल को सेल में ही ट्रीट किया जाएगा। दैट सेल ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सेल, आइदर कैश और क्रेडिट, राइट? बोथ ऑफ द सेल इज सेल अंटिल इट इज बैड डेट्स, राइट? तो यहाँ पर आपका 53 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर वेरी हैप्पी विद यू ऑल। आप हमारे वीडियोज को लाइक करते हैं और व्यूज भी इंक्रीज हो रही है, सब्सक्रिप्शंस भी आ रहे हैं। इससे हमें समझ में आता है कि आप सभी लोग सीरियस हो गए हैं अपने एग्ज़ाम से, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार आपको पास नहीं करेंगे, पास नहीं करवाएंगे, बल्कि टॉप करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए लगे, आप अपने करियर के लिए लगे हमारे साथ में। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।